A very good afternoon to all the dignitaries and students present here. I, Madiha Fatima, Senior Research Fellow of this department, feels immense pleasure to welcome you all in this panel discussion on the topic Happiness for Academic Excellence. Before beginning the session, I would like to request all the esteemed panelists to come for lighting of the lamp. Professor I would like to request Professor Arvind Mohan sir, Dean Faculty of Arts, to please come for lighting of the lamp. I would like to request Shri Alok Ranjan sir, former Chief Secretary UP and former President LMA, to please come forward. Professor Madhurima Pradhan ma'am, Founder Director Happy Thinking Laboratory, and Dr. Archana Shukla ma'am, Head Department of Psychology. I would like to request Rahul Das sir to please come for lighting of the lamp. Before we dive into today's discussion, let's take a moment to reflect on the theme of the panel discussion, which is happiness for academic excellence. Today's discussion will focus on very vital yet often overlooked element of academic success, which is happiness. While hard work and discipline are key to achievement, but emotional well-being plays a crucial role in enhancing focus, creativity, productivity. Happiness in academics means fostering a positive mindset and emotional resilience, which significantly improves learning outcome. Today, our panel will explore how happiness can be integrated into education to create more balanced, motivated, and successful academic performance and achieve excellence in academics area. With this, I would like to request Dr. Archana Shukla ma'am to welcome Professor Shri Alok Ranjan sir, former Chief Secretary UP and former President LMA, to welcome with a beautiful bouquet. Please, sir, I would like to request to please take seat on the dais. Professor Arvind Mohan sir, Rahul Dutt sir, Professor Madhurima Pradhan ma'am, and Dr. Archana Shukla. Ma'am, please welcome Shri Alok Ranjan sir with a beautiful bouquet.
Thank you, sir, for your time. Now I would like to request ma'am to please welcome Professor Arvind Mohan, sir. And please welcome Professor Madhurima Pradhan, ma'am. And I would like to request ma'am to please welcome Rahul, sir, Secretary LMA. Now, sir, I would like to request Rahul, sir, to please come forward and moderate the session. Thank you, sir. Thank you. Good evening, everybody. All the students from Lucknow University. Very nice to see all the students. It's always pleasure to connect with the students. It reminds of our olden days also when we used to study in the university. And Lucknow University is a very prestigious university. I belong to Meerut. So I have studied part of my studies in Meerut University, and then Himachal University I did my MBA. But many of my friends were from Lucknow University. I used to ask them कि किस तरह की university है. It's a huge, very big university. And at that time in the 80s, it was, I think, one of the best university as far as infrastructure and everything is concerned. So you guys are very lucky to be part of this university. And now coming to today's program. Today we are having a very important program on happiness. And these programs we are doing for the past 3-4 months, and this is the series we are doing. And we are very thankful to Alok Ranjan sir, who has inspired us, LMA, Lucknow Management Association, to conduct series of program. And he has also written books on happiness also. So huge round of applause for him to identify such a important issue of happiness today in today's world, where academic excellence is also part of it. We have done on public policies and other important programs on happiness, but academic excellence is also very, very important. So today we have a wonderful panel, Dr. Madhurima Pradhan, as you all know her, and Dr. Archana Shukla madam, and Professor Arvind Mohan is also there, is a top class economist we have. And I have been listening him on television also for economic dispensations. And today, before we'll start the program, let me tell you something about Lucknow Management Association. This association have around 2,500 members from all backgrounds, from doctors to engineers to academicians to from PhDs, all from all walks of life, from business purview also. So this is one of the top rated association, and we are associated with All India Management Association, and this year only we got second prize in All India category 1. So this is the achievement. We could able to do it because of huge membership we have and the program we are conducting throughout the year. So, and we'll continue to do all the important areas we usually cover in this in our programs. So today is a very important topic of happiness, and now I will request Alok Ranjan sir to start the program. Over to you, sir. Thank you very much. आप लोगों को ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे ना, इसलिए मैंने कहा यहाँ आ गए. Dignitaries on the dais, the panelists, the speakers,
and also dear students and members of the Lucknow Management Association. Well, this I think is the fourth such seminar that we are having on this very important topic of happiness. And it's such a relevant topic. We all are looking for happiness in our lives, yet we don't seem to be thinking about it at any point of time, you know. We don't even think, are we happy or are we unhappy? What is making us happy? What is making us unhappy? Sometimes we don't even have time to even think about this and keep moving through life. So that was why we had, you know, incidentally, this whole idea came to me when I was teaching a course. I offered to teach a course at an Institute of Management, that is Jaipuria Institute of Management. I said I'll design a course on happiness and teach the students, MBA students. So they all found it very surprising. They said कि अरे MBA वाले तो पैसे के पीछे रहते हैं खाली, कितना CTC मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी. They are not concerned about all this happiness and all this nimbo jimbo kind of concepts. I said नहीं नहीं मैं try करता हूँ. So I offered them an elective called happiness. And would you believe it, 102 students opted for the course. So this was a big surprise कि इन्होंने गलती में कर दिया या गलत फहमी में कर दिया या जैसे भी कर दिया, but they did opt for the course, 102 students. And I was not an academician, I am being a civil servant. For me it was a big thing, you know. मुझे पूरा एकेडमिक डिसिप्लिन में डाल दिया उन्होंने वहाँ, जैसे आप लोग होंगे यूज टू. उन्होंने कहा 2 सेक्शन पढ़ाने होंगे, और फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम दिस सेक्शन, फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम दिस सेक्शन, एंड गिव द कोर्स आउटलाइन, गिव द इवैल्यूएशन, कैसे करेंगे क्या करेंगे. बहुत they made me quite unhappy designing the happiness course, but anyway I went ahead with it. और मैंने कहा ठीक है पढ़ाते हैं. So I taught and I was surprised the kind of reaction I got from the students. They were in the beginning very skeptical. In the beginning they asked a lot of questions, and in the beginning I remember most of them said one thing. जब मैंने कुछ बात कही तो वो कहने लगे sir, which I was expecting from them. They said sir, our view of life is that happiness comes only from money. They said that very clearly. उन्होंने उस बात को छुपाया नहीं. उन्हें साफ कहा सारे स्टूडेंट्स जो थे कि हमारा तो यही कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस. And we believe in this. Then I told them no, you are right, that money is important for life. Money in fact is very important, and absence of money I said can be a cause of great unhappiness, but money by itself does not lead to lasting happiness. It leads to happiness up to a particular point of time, and thereafter I told them how happiness plateau कर जाती है, plateau करके it comes down. It reduces with more and more money that you have. So money is no guarantee for happiness in life at all, and neither is any materialistic thing a guarantee for happiness in life. Life, if you look for happiness, it is something which is within you, intrinsic factors which come from inside you, the sense of peace, the sense of calm, you know, the sense of balance, the positive emotions that you're getting inside you. These are the things which will make you feel happy. And paradoxically, as I said in the very beginning, most of us are seeking happiness in life. This is the only goal, right from the time of Aristotle. Aristotle said the purpose of human life is happiness. Though of course he said virtue is the path to happiness. But he said the goal of human life is happiness. You see in Indian mythology or Hindu mythology, religion, everywhere it is talk of Anand. Concept of Anand is there. Bliss. What is this? No, Param Anand. This is what everybody is striving for. That is happiness they are striving for all through. Then you come to even modern times. This is what everybody wants in life. Yet they don't seem to be getting happiness. It eludes them. The more people run after happiness, it eludes them. And why does it elude them? It eludes them because they're looking for happiness in the wrong place. They're not looking for the right place. Just like a musk deer, as I said, no? It is saying, where is the smell of this musk coming from? The musk is inside the deer, but it is looking for it outside. So the happiness is inside a person, but a person is always looking for it outside himself. And as someone said very nicely, most of us, you students will agree with me, we outsource our happiness. हम अपनी खुशी किसी दूसरे को दे देते हैं. उसने ये कहा तो मैं खुश हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया तो मैं खुश हूँ, उसने ऐसे बिहेव किया तो मैं दुखी हूँ, उसने मुझे हर्ट कर दिया, उसने मुझे सोशल मीडिया पोस्ट पे लाइक नहीं किया, उसने ये किया, उसका रिएक्शन मेरे ऊपर हो रहा है. दैट मीन्स हैप्पीनेस में हम अपने लिए जिम्मेदार नहीं है. वी आर लुकिंग फॉर समबडी एल्स. XYZ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस. ये तो नहीं हो सकता ना. जो चीज़ आपकी अपनी है, जो आपके अंदर है, you have to cultivate that and get it. You don't have to look for somewhere outside for that. And the second thing I always try to say, जो मैंने अभी पिछले 2-3 सेमिनार में भी कहा है, कि happiness
you may or may not agree, is a choice. Even though we want happiness, we don't choose happiness consciously. अगर आप अपने बिहेवियर को देखिए, आप सोचिए आप दिन भर 24 घंटे क्या सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, किस चीज़ में आपका दिमाग लगा है, then you will find out that actually you are choosing unhappiness instead of happiness. हर समय वी आर कंसर्न अबाउट दूसरा आदमी, वो कहाँ तक पहुँच गया, रिलेटिव, हम वहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, उसको ये मिल गया, हमको ये नहीं मिला, वो ना कंपेयरिंग थिंग्स, थिंकिंग ऑफ नेगेटिव थिंग्स, कैरिंग बैगेज फ्रॉम द पास्ट. जितने पास्ट में नेगेटिव चीज़ें हुई होंगी आपकी ज़िंदगी में, वो आपको हमेशा याद आएंगी सबसे ज़्यादा, और जो पॉजिटिव चीज़ें हुई होंगी वो नहीं याद आएंगी. यू विल नॉट रिमेंबर दोज. यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ थिंग्स की कहाँ हर्ट हम कितने हुए, कितने हम दुखी हुए किस चीज़ से, कितना हमको सैडनेस मिली. When you keep remembering all that, then all through life, what are you doing? You are pursuing unhappiness instead of pursuing happiness. So here, I think the idea of today's talk today is, when you're talking to your students for academic excellence, और हमारे बड़े-बड़े academicians बैठे हैं, I am no one to take time from them, but they will tell you how, as a student, how happiness is important for you, and happiness will lead to academic excellence. In life also, let me tell you, we want success, isn't it? Whenever we take up a job or any profession we take up, we want success. And we think that success will give us happiness. But it does not. Success does not. You have to reverse it. What reverse that is true? Happiness gives us success. If you are a happy person, you will be a successful person in life. It's not the other way around, that if you are a successful person, you will be happy. And same will apply to academic excellence out here. If you are a happy student, if you are happy in your attitude in your life, academic excellence will flow out of it. It's not that if you are academically excellent, you will become happy. It will work the other way around. So I think they will tell you the techniques and their studies and research that they have done on this topic. I'll just share a couple of things with you on this issue. If I say, you must have all, I don't know, many of you must have seen वो एक है ना कोटा फैक्ट्री, देखिए. Now you see what is happening. What is happening to the students जो JEE की तैयारी करने वहाँ गए हुए हैं? What is the level of unhappiness that is visible in each and every one of the student who's out there? So what are they looking for? Somehow they think that some magical getting into JEE will make them happy, and majority of them don't get in. क्या होता है? Number of suicides are going up. So many suicides have been committed by students in Kota. Then recently you must have heard about Mukherjee Nagar in Delhi, which is the place where UPSC examinations are taken. UPSC aspirants go and stay there, Rajendra Nagar and Mukherjee Nagar. And then a couple of students died in that flood out there. And then the whole issue was raised. And then you found that so many people have left their home and for years, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल वहाँ बैठे हुए हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और पढ़े हुए हैं. Do you think there is a level of happiness that they are feeling out there? Is a question that must be seen. Are they happy or are they not happy? What are they searching for? What are they looking for? क्या ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे वो पड़े हुए हैं, जिससे वो खुशी ढूंढ रहे हैं लाइफ में या कुछ और ढूंढ रहे हैं? What are they doing out there? That is very important to understand, you know, how these students, and they need to be taught what is what you should look for in life. This is not what is the answer to everything is. It is something else that you must look for. Now talking of, academic excellence, you all know, you see a lot of stress is there, especially when the examinations come, isn't it? So stress by itself is nothing bad. Stress by itself is not a cause of unhappiness. In fact, stress has been given to human beings so that they can perform better. It's an evolutionary thing. Just the time we were food gatherers and roaming around in the jungle, stress was given to us because we could then fight our enemies and respond to them. That is why the stress was there. So stress is a positive thing. It's not a negative thing. But what we have done is we have converted it into a negative thing. Because stress leading to worry, worry leading to anxiety, and anxiety leading to mental health issues. If that happens, then stress becomes a negative thing. And that is what is happening today. So in academic life also, you've been noticing many students. अब आप मैं देखता हूँ, मुझे भी अपना academic दिन याद आते हैं. तो I remember many students when I was in the hostel also studying, रात रात तैयारी करते थे before the examination. और मालूम पड़ा सुबह 8 बजे तक they are reading from the copy book and straight moving to the examination hall. पढ़ते चले जा रहे हैं तब भी परेशान, worried बिल्कुल, शेव भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, चले जा रहे हैं. So they seem to be so upset and stressed. So I of course had a different style. I used to never study beyond 8 o'clock in the evening before the examination. तो मैं 8 बजे बंद कर देता था, आराम से रिलैक्स करता था. और अगले दिन सुबह मैं पूरा अपना रूटीन करता था कि एक्सरसाइजेस भी करता था, न्यूज़पेपर भी पढ़ता था,
नहाता धोता भी था, ब्रेकफास्ट भी करता था अच्छे से, तब जाता था एग्जाम. सो माई माइंड यूज्ड टू बी फ्रेश. सो आई फाउंड दैट उसमें क्या होता था, मैं आपको बताऊँ एकेडमिक एक्सेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. इफ द पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल वॉज, जिसे कहते हैं घिसा पिटा पेपर ना, राइट स्ट्रेट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन स्ट्रेट which you can answer from the textbook, then those people also used to do quite well. There was no problem. But whenever a difficult paper came, which was not directly from the textbooks, and you had to use your mind and apply your mind and crisscross, connect thoughts, connect chapters, then I found that I was able to do much better than those people because my mind was fresh. I was not feeling stressed negatively, while they were negatively stressed and full of so much of material that pushed into their mind that they were not feeling happy about it at all. Second thing I'll say is, learning should be a happy experience. Academic excellence will come only if learning is a happy experience. It should be a happy experience. Thrill आनी चाहिए ना पढ़ाई की. वो thrill मैंने देखा आजकल बहुत लोगों को नहीं आती है. वो they are so focused on the exam. यार किसी तरीके से examination दो, marks लाओ. They are not getting excited by reading up new chapters, reading up new theories, understanding new concepts, getting new knowledge. The essence of academic excellence is that, in fact, not just getting marks. The essence of academic excellence is how much knowledge you were able to bring into yourself, how much you can open yourself, और कितना आप widely पढ़ते हैं, कितना widely knowledge को लेते हैं. That will give you a feeling of excellence. In fact, I remember in my career also I was very heavily into reading, so I always used to read far beyond the course. तो उसको पढ़ने से बहुत मजा आता था, उससे बहुत knowledge मिलती थी आपको subject के बारे में. You start understanding कि what is it all about. Then you say कि हाँ, reading each new thing, a sense of excitement आना चाहिए अंदर से. The sense of excitement आ रहा है, then you're happy. Otherwise, you're not happy. If that excitement is not coming, then you're doing something only as a routine. Another thing, success and failure लोगों के दिमाग में बहुत रहता है. और अब वो करियर भी लोग ऐसे चूज कर लेते हैं. ये मैं आपको बताना चाहूँगा. अभी आप लोग सब करियर चूज करेंगे. People choose a career or a course also, which they are not suited for. Now that also leads to unhappiness. You should understand yourself. If you know yourself, then you choose the line which you are good at. और आपने अगर वो चुना जो आप गुड पे हैं, तो then you will do well in life. Otherwise, you will not do well. And I was principal secretary technical education in UP. I remember, वो parents used to be forcing their children कि वो engineering में जाना है, class 12 करने के बाद. Every boy and girl has to become an engineer. अब वो सब UP TU का एग्जाम हो रहा है, JEE एग्जाम हो रहा है, और किसी से अब वो एक आधा बच्चा कोई नहीं आया, तो दे केम रनिंग टू मी, सर वो कहीं मैनेजमेंट कोटा में करा दीजिए इसका, वो हुआ नहीं इसका सिलेक्शन. हमने कहा भाई क्या बात है, लेट मी सी हिज मार्कशीट. सो आई सॉ द मार्कशीट ऑफ दैट बॉय एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में ही एट 45%. तो मैंने कहा जिस बच्चे के PCM 45% है वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, बट व्हाई आर यू फोर्सिंग हिम टू डू इंजीनियरिंग. तो नहीं सब इंजीनियरिंग तो करनी पड़ेगी, बिना इंजीनियरिंग के कैसे होगा. मैंने कहा इट डजंट मीन दैट ओनली बाय डूइंग इंजीनियरिंग यू बिकम सक्सेसफुल. You let us see. Then I talked to that boy for about 15-20 minutes, and I found that he was very fascinated by law. तो मैंने उनके पेरेंट्स से कहा इसको आप लॉ कराइए, he will do very well. He is interested in that subject. Since he is interested in that subject, he is interested in that line, he will succeed in that area. Don't force him into engineering, which is not good for. Similarly, ये आप लोगों की बात भी आती है. If you choose a course or you choose a career or choose a vocation, choose something which is of your own calling, जो आपके अंदर से आती है. That will make you happy. जो आपके अंदर से नहीं आएगा वो आपको हैप्पीनेस नहीं देगा. चाहे आप कोई भी काम कर लीजिए, चाहे जितनी भी सैलरी मिल जाए, you will not be happy. It's and that choice at any point of time you must make. I'll just say two more things before I complete. I remember, मैं आपको बताता हूँ कि सक्सेस फेलियर का कितना ही होता है. How she mentioned, the compare mentioned resilience. Resilience is a very important factor. How you face success and how you face failure, both are very important in life. I'm telling you, people are not able to take success also. It goes to their head, they become arrogant, they become, non-receptive, insulated, and then they lose out. And people are not able to take failure at all. They think failure means rejection. Failure, it is not rejection. You have to understand what you're doing, what you're not succeeding at. Maybe you'll succeed at something else. मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ. आप देखिए कि ये मैंने देखा सामने सामने होते हुए. I did my MBA from IIM Ahmedabad. So when I was doing my MBA from IIM Ahmedabad, so वहाँ पे क्या हुआ, we were at that time 150 स्टूडेंट्स हुआ करते थे. अब तो 400-500 होते हैं, तो 150 हम लोग हुआ करते थे. We were 150 of us were there, and जो थे जितने स्टूडेंट थे वो सब कहीं ना कहीं के टॉपर थे.
कोई IIT का टॉपर है, कोई किसी की फिजिक्स का टॉपर है, कोई मैथमेटिक्स का टॉपर है, कोई इकोनॉमिक्स का टॉपर है, कोई कॉमर्स का टॉपर है। सबका करियर आप देख लीजिए तो उन्होंने ज़िंदगी में सुबह से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक सबने टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट है, फलाना है, ठिकाना है। सडनली व्हाट हैपेंड इन IIM, जब 150 टॉपर्स बैठ के देने लगे एग्जामिनेशन, तो भाई कोई तो ऊपर आएगा, कोई नीचे आएगा, नॉट एवरीबडी कैन टॉप। So suddenly some people started coming at the bottom. लास्ट 5 परसेंटाइल पे आने लगे कुछ स्टूडेंट्स जो कि अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी सेकंड पोजीशन नहीं देखी थी। वो मालूम पड़ा कि सडनली मालूम पड़ा वो लास्ट 15 में, लास्ट 10 में आ रहे हैं, उनको C ग्रेड मिल रहा है। रिलेटिव ग्रेडिंग होती ना, वो रिलेटिव ग्रेडिंग होती थी। तो आप रिलेटिव ग्रेडिंग का तो ये हाल था कि मतलब इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। हम तो इकोनॉमिक्स करके गए थे, जैसे अरविंद मोहन साहब आपके, वैसे हम भी इकोनॉमिक्स के थे। हमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके फिर MBA में गए थे सीधे। तो ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स एज कंपेयर टू एन IIT पर्सन, उसकी बराबरी नहीं थी। वहाँ 60% वर IIT एंड 85% वर इंजीनियर्स इन माई बैच। अब उन सबकी तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, टेरिफिक। इन IIT पीपल आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो क्या होता था, एग्जाम होता था तो हमको तो मैथ्स के जो पेपर्स होते थे उसमें क्वांटिटेटिव वाले, अब हम भी खूब पढ़ के जाते थे। मालूम पड़ा कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा पढ़ा, 80-85% भी स्कोर कर लिया, और ग्रेड आ गया B- या B आ गया। तो सोचते थे ये क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन ये ग्रेड इतना कम कैसे आ गया। एक कैसे मिलेगा, वो IIT वाला तो 98 लेके बैठा है। जब वो IIT वाला 98 लेके बैठा है, उसको A+ मिल रहा है, A+। तो आप अगर 85 लेके आएंगे तो आपको B मिलेगा, और क्या मिलेगा, नथिंग एल्स यू विल गेट। सो दैट कुड बी वेरी अपसेटिंग एट टाइम्स, ये क्या हुआ। देन सडनली आई रियलाइज कोई बात नहीं, आई एम शेयरिंग विद यू, फॉर 15-20 डेज आई वॉज क्वाइट अपसेट। और वो स्ट्रेस के सिम्टम्स और जो मेंटल एंग्जाइटी के सिम्टम्स मेरे को होने शुरू हो गए। हेडेक होना शुरू हो गया, स्लीपलेसनेस थोड़ी होने लगी, डिसोनेंस होना शुरू हो गया। अरे ये छोड़ो, MBA किसी और जाते हैं, फिलॉसफी में करेंगे, ये क्या करने चले आए, ऑल काइंड ऑफ थॉट्स केम टू माई माइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देन स्लोली आई एडजस्टेड माई सेल्फ। वही टुडे ठीक है, दे आर बेटर देन मी इन मैथमेटिक्स, बट आई मे बी बेटर देन देम इन समथिंग एल्स। और वो सामने आया, हमको लिखना बेटर आता था उनसे, देन दी इंजीनियर्स। आई कुड राइट बेटर। तो वहाँ एक होता था रिटन एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन पेपर होता था। रिटन एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन वो केस स्टडीज देते थे, उसमें लिखिए, तो वो बड़ा डिफिकल्ट माना जाता था। अब उसमें इंजीनियर्स की जान निकल गई सकती। वो मालूम पड़ा 4-4, 5-5 बार पूरी रात जो है लिख रहे हैं, ड्राफ्टिंग, रीड्राफ्टिंग, और बंद मर के। और हमने जो बैठा 1.5 घंटे में लिख के हमने पेपर अलग कर दिया, और हमको A ग्रेड मिल गया, उनको BC मिल गया। तो सब मेरे कमरे में आ गए, यार क्या किया तूने, क्या लिखा, क्या पेपर दिखा यार, लिखा कैसे। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं तो ऐसे जैसे वैसे लिखता हूँ वैसे ही लिख दिया। देन आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ये मैथ्स में लाते हैं तो मैं इनको इसमें दिखाता हूँ कम से कम। सो द पॉइंट ऑफ द मैटर इज इन लाइफ, you can be, if you may not be very as good as the other person in something, you can be much better than the other person in something else. Focus on your strength. Focus on your strength. Build up on your strength. If you build up on your strength, you will be happy and get academic excellence. और जो मैंने कहानी अधूरी छोड़ दी कि in my own batch, 4 students lost their mental balance. This I am sharing with you the right story from IIM Ahmedabad. उस जमाने में 4 लड़के ऐसे थे जिनका मेंटल बैलेंस कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया। 1-2 तो ल्यूनेटिक एसाइलम में चले गए। क्यों चले गए? वो यही कहते थे, उनमें से एक था, वो बात करता था, कहता था आई एम मेड फॉर ग्रेटनेस, आई एम ग्रेट, बट व्हाट इज हैपनिंग। उसकी ग्रेड बिल्कुल उसके लोएस्ट आ रहे थे। तो वो इतना फेलियर को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो ये भी आना चाहिए लाइफ में। समटाइम्स यू मे फेल, इट मे हैपन, देयर मे बी रिजेक्शन, देयर मे बी फेलियर, यू हैव द एबिलिटी टू टेक इट। फेलियर का मतलब ये नहीं हो गया कि आप लाइफ में फेल हो गए। फेलियर का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर चीज में कहीं आप लोगों से कम हो गए। गो अहेड, डू समथिंग एल्स, फाइंड अनदर वे एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, एंड ऑफ कोर्स नाउ very experienced people are going to speak to you, and please listen to them. And shall I start by, whom shall I call? Dr. Archana Shukla को बुलाते हैं सबसे पहले, Head of Department of Psychology. I think she should lead the discussion. I will give about 10 to 12 minutes per speaker. उसके बाद वो घंटी में बजा दूंगा, तो घंटी मतलब खतरे की घंटी है। उसके बाद आप लोग बोलना धीरे धीरे करके टेपर ऑफ कर लीजिएगा। And at the end of this, we will like to have questions and issues. आप लोग इंटरैक्ट करिएगा थोड़ा। मतलब ये हैप्पीनेस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक तरफ से बोल दिया और दूसरे ने सुन लिया। इसको तो आपको महसूस करना पड़ेगा।
और महसूस करना पड़ेगा तो उसके बारे में आपके हो सकता है रिएक्शंस हो सकते हैं. योर रिएक्शंस कैन बी एनीथिंग. यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री, पर बोलिए तो ना अपनी बात को. तो आई वुड लाइक यू टू बी इंटरैक्टिव. कम आउट विद योर इश्यूज विच मे बी बॉदरिंग यू इनसाइड यू, एंड हियर इज हिज esteemed panel to answer what you are saying. So let me now request Dr. Archana Shukla to be the first speaker today. Thank you. थैंक यू सो मच सर. आज जो आपने बात कही उसमें से बहुत सारे वर्ड्स मैंने भी उठाए हैं, और मैं अपने बच्चों तक से कहती हूँ जो मेरे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं कि जीवन में फेलियर और कॉम्प्रोमाइज़ आपकी पर्सनैलिटी को और शार्प, आपकी पर्सनैलिटी को और ग्रेविटी देते हैं. तो अभी सर जो बात कह रहे थे, आई फर्मली बिलीव कि ये जो रिजेक्शन, कॉम्प्रोमाइज़, मन मारना, अपने आप के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत बहुत आगे तक लेके जाती हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जो अब की जनरेशन है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, उनमें ये चीज़ बिल्कुल कमी रहती. उनको ये चाहिए मैं वो काम करूं जहां मुझे 100% सक्सेस मिले. मेरे हिसाब से स्टूडेंट लाइफ में ये समझना और आगे के जीवन के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ इज़ नॉट वेरी मैकेनिकल, 1+1 2, मतलब आप एक कैलकुलेशन करके लेके चलें, तो ये अगर आप करते हैं तो ये आपको दिक्कत में लाएगा. दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जैसे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकती हूँ, या जो भी जहाँ भी आज मैं पहुँची हूँ, योर पर्सनल फोकस इज़ द की टू योर सक्सेस. और मैं उसको बड़ी जैसे कहते हैं ना, बड़ी गांव वाली भाषा में कहती हूँ, जब घोड़े को चलाते हैं तो उसके वो बांध देते हैं. पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, कि वो उसका विजन सामने रहे, वो इधर उधर ना देखे. तो जी, तो मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में अगर आपके पास वो है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कैरियर इज़ इन फैशन, व्हाट पीपल आर डूइंग, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की इस समय हाई डिमांड है, इस सब को छोड़ दीजिए. जो आपका फोकस है, जिसमें आप अपना 100% दे रहे हैं, बिलीव मी 100 to 100% यू विल ऑलवेज अपीयर एज अ विनर. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब मुझे ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं. अभी मुझे कुछ दिन पहले काउंसलिंग के लिए एक बच्ची आई थी, उसने जेई भी निकाला और नीट भी निकाला. अच्छी बात है, ऑब्वियसली भाई इतनी टैलेंटेड होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात समझ में आई कि अगर इतनी एनर्जी वो एक में लगा के अपने जीवन को और चैनलाइज कर देती तो वो फोकस और कहीं क्लियर हो जाता. सोचिए, जो 2 में निकाल पाया, अगर वो 1 में जाता और एक स्ट्रीम लाइन में जाता, तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और उनमें वो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट हैं. अगर आप थोड़ा सा फोकस अपना बनाइए तो मुझे लगता है योर लाइफ विल बी अ रियल अ विनर. और तीसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, जो सर ने भी कही और मैं भी बिलीव करती हूँ, इंट्रोस्पेक्शन. जितना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, जितना खुद को समझेंगे, किसी से आपका छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाए, शाम को चाय के कप के संग ज़रा बैठ के समझिएगा, क्या इस आर्ग्यूमेंट में आपका रोल कुछ कम हो सकता था? क्या इस बहस में आपका रोल कुछ अगर कम होता तो ये बहस ना होती? कुछ तो ऐसा हो सकता था जिससे इस सिचुएशन को कम से कम नेगेटिव ना से पॉजिटिव ना सही पर न्यूट्रल बनाया जा सकता था. द मोर यू इंट्रोस्पेक्ट, एंड आई ऑलवेज इन माई लेक्चर्स टेल, या ट्रेनिंग में हमेशा ये कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को जानता है वो जीवन में सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है. क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आप गुस्सा दिला नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति को आप खुश कर नहीं सकते. उसको सारी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, तो उसको लोगों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. तुम कुछ कहो ना अच्छा तो हम खुश हो जाएंगे, तुम कुछ मुझको बोलो ना तो मुझे गुस्सा आएगी. नहीं, मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस. आई एम अ सेल्फ रेगुलेटेड पर्सन. हमें पता है कब कहाँ कितना क्या करना है. और क्लास में जो बच्चे जिन्हें हम पढ़ाते हैं वो अक्सर मेरे इस एग्जाम्पल से बहुत त्रस्त रहते हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ, पंखा सबने, ईश्वर ने सबको दिया है, रेगुलेटर तुम बनो. रेगुलेटर समझते हैं? अगर पंखे में रेगुलेटर ना हो तो क्या होगा? ऑन करो तो फुल पे चलेगा और ऑफ करो तो बंद हो जाएगा. दुर्भाग्य है हमारी नई जनरेशन ऐसे ही है, या तो बिल्कुल फट पड़ेंगे या बिल्कुल गुमनामी में रहेंगे. रेगुलेटर रखो भाई, जब 1 पे हो तो 1 पे चलाओ, 2 पे हो तो 2 पे चलाओ. तो बी अ रेगुलेटेड पर्सन. और इसीलिए शायद मैम भी एग्री करेंगी, इस समय इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन पे इतना काम चल रहा है अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो स्वयं में सेल्फ रेगुलेटेड हों. और अगर आप इसको अपने वैदिक उससे जोड़िए तो वहाँ भी बहुत कुछ कहा गया है आत्मसंयम के बारे में. आपको पता है कहाँ जाना है, कितना करना है, कितना बोलना है. अगर आपको ये चीज़ों का आइडिया है, देन बिलीव फिर यू आर अ मिरेकल एंड अ बून टू द सोसाइटी.
मेरे ख्याल से आई थिंक एनी क्वेश्चंस वी विल एंटरटेन लेटर, बट बेसिकली आई पर्सनली फील दिस इज द फोकस एंड शुड बी द की टू हैप्पीनेस. थैंक यू सो मच. We'll have questions at the end after all the three speakers have spoken. Now may I request Professor Madhurima Pradhan to speak. Good afternoon to all of you. First, I would like to thank LME for inviting me to this panel discussion. And Professor Arvind Mohan sir, I'm very thankful to you that you allowed to conduct this panel discussion in psychology department. And as Rahul Das sir noted that we are running a series of panel discussions on happiness. And I must say that the topic they choose are very instigating, and they motivate me even to find out how happiness can be a part of public policy and what are the science and art of happiness. And today's topic is also very challenging, happiness for academic excellence. We all know that everyone wants happiness and no one wants pain. But how can we get a rainbow without a little rain? So efforts आपको करने हैं. लाइफ में बहुत कुछ होगा, जैसे कि यहाँ पर बात हुई, अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, और हैप्पीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड एज आलोक रंजन सर ऑल्सो सेड कि MBA में पढ़ा रहे थे तो ये हुआ कि मनी है तो हैप्पीनेस है. बट इज़ मनी इम्पॉर्टेंट, दैट मच इम्पॉर्टेंट टू सब्सटीट्यूट इंटरनल हैप्पीनेस? नो. In view of the importance of happiness, the Bhopal Naresh in 1972 gave the concept of gross national happiness. And they highlighted that in spite of being materialistically advancing, or the GDP cannot be an indicator of happiness. But the gross national happiness, which depends on non-material aspects of life, it is more important than happiness. And they talked many indicators, and it is very sad to know that India stands very low on this happiness index. In 2024, 126 out of 144th country, we got the 126th position. So we are very low on this happiness index. Despite being so important, how we can go about it? And students are the pillars of our society. If they are happy, then they can lead the country forward. So we have to think how students can be happy in their lives. There are many researches which have been done, what makes happiness, what is important for happiness, and these researchers highlight that it is neither your socioeconomic status, neither income, nor gender, nor education, nor intelligence. They are very weakly associated with happiness. The most important thing for happiness is your sense of gratitude, your self-esteem, your optimistic outlook. When we talk about academic excellence, we can have a quantitative and qualitative indicators of happiness. Quantitatively, we can see that if you get good grades, marks, and your publications are high, you are academically excellent. But qualitatively, we have to think something more about academic excellence, something more about your grades and marks. If you are active in your classroom, if you are creative in your projects, assignments, you ask questions, if you are enthusiastic, if you are passionate, then you can be qualitatively happy. Then if you have a growth mindset, if you fail for some time, then you see that if I am failed this time, I can excel next time. So students have certain qualities which can affect both their academic excellence as well as their happiness. And in our Indian scriptures, it has been very briefly outlined the 5 characteristics of good students who can excel academically. They are, it has been said, the kak chesta, bako dhyanam, shwan nindra, tathavacha, Alpahari, Graha Tyagi, Vidyarthi, Panch Lakshana. Now I will discuss briefly that how these traits can be related with happiness. First is the Kak Chesta. If you are perseverant, if you think that if you fail, it's not failure that is important. If you
quit trying. It is important. If you quit trying, then you will not be academically excellent. We all know many examples of perseverance in life. एडमंड हिलेरी, ही वॉज अ माउंटेनियर. बहुत बार उसने माउंटेन्स को चढ़ा बट वो फेल हुआ, लेकिन एक बार उसने माउंटेन के सामने खड़े होकर बोला कि यू कैन नॉट ग्रो बट आई कैन ग्रो एंड आई विल कम अगेन एंड कॉन्कर. So there are many examples. J.K. Rowling, who was a most popular novelist of Harry Potter, his script was not accepted. It was refused for publication, but he kept trying. There are many, many examples. And then Bakko Dhyanam, your concentration or focus. It has been earlier said by earlier speakers that how we focus and where we focus, whether we focus on competition or we focus on opportunity, whether we focus on success or we focus on failure. So it is most important where is your focus is. And next is the Shwan Nindra. It means you should have a proper sleep-wake cycle. Today we know that the students are not taking care of their sleep body clock. They are spending a lot of time in WhatsApp or social media, which is affecting their chemical balance in the body. Next is the Alpahari. If you would pay attention to your diet, what you are eating, it will be very important for your physical health. And lastly, you should be Grahatyagi, means open to experience. The moment you go out of your house, then you are open for challenges in your life. If you don't accept challenges, then your growth is hampered. You have to understand that the more you accept challenges, the more you grow. The more you put yourself in challenges, the more you face obstacles, the more you grow. So these are the academic excellence indicators, and these qualities, if the student possesses, they can achieve happiness in their lives. But now the question is, how to become happy in life? It's not that easy. Although we say that happiness is very simple, but it is very difficult to be simple. Simple होना बहुत कठिन है. Psychologists have done good researches in that area, and they say that it is the mind management which can help you to achieve both academic excellence as well as your happiness. There are many neuro-linguistic programmers which tell many exercises to keep you aware that what is the power of your mind. If you close your eyes and imagine that a heavy book is there on your palm, and another hand, if you imagine that there are the balloons, gas balloons in your hand, and the balloons are putting you upward and the book is putting you downward. If you keep the time is less, otherwise I would given this exercise to you, and it is very interesting. You can do at your home. आँख बंद करके सोचिए, एक हाथ पे भारी किताब रखी है. आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारी भारी किताबें होंगी. मुझे तो इस समय एक्टिव साइकोलॉजी की किताब याद आ रही है, जो शायद सबसे भारी किताब मैंने देखी. अगर आप उस बुक को इमेजिन करिए एक हाथ पे, और दूसरे हाथ पे इमेजिन करिए कि बैलून्स है और गैस के बैलून आपको ऊपर खींच रहे हैं और हाथ की किताब आपको नीचे खींच रही है, तो यकीन जानिए आपको ऐसा लगेगा कि एक हाथ आपका भारी हो रहा है, दूसरा हाथ ऊपर को जा रहा है. देयर आर मेनी एक्सरसाइजेज of mind. You can imagine the power of the mind. It is very creative. आप क्लोज करिए अपने आइज़ और कहीं पर आप नेचुरल जगह जहाँ गए हो, कहीं किसी पार्क में, कहीं नेचुरल सीनरी आपने देखी हो, तो यू विल इमेजिन कि आप वहीं पहुँच गए. तो माइंड की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. माइंड जो रियल है और अनरियल है उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता. अगर आप इमेजिन करते हैं कि आप ऐसे हो गए हैं या आप ऐसे हो रहे हैं, तो वास्तव में आप वैसे हो जाते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को किस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं साइकोलॉजिस्ट. जैसे कि एक एंकरिंग की टेक्निक है कि इफ़ यू आर सैड और योर नेगेटिव इमोशंस आर परवेडिंग यू. ये होता है कि आप जब पढ़ाई करें आपको कभी कभी लगेगा कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं फेल हो जाऊँगा, नहीं हो पा रहा, नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो यू हैव टू सीक योर एंकर्स. जैसे कि एक समुद्र में जहाज़ चल रहा होता है ना, वो अगर बहुत तूफान है तो वो एंकर डाल देते हैं और फिर वो जहाज़ कहीं हिलता डुलता नहीं, एक ही जगह स्थिर रहता है. इसी तरह से यू हैव टू फाइंड योर एंकर्स, कि योर पास्ट सक्सेसेस कैन बी योर एंकर्स. आप सोचो कि आप ही तो थे जिसने सफलता पाई, आप ही तो थे जिसने सब कुछ किया. और कुछ भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं. हाउ कैन यू फाइंड योर फोकस बैक, हाउ कैन यू फाइंड योर मोटिवेशन बैक, योर कॉन्फिडेंस बैक, बिकॉज इट हैपन्स.
होगा ऐसा कि आप फेल हो गए. समटाइम्स द विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस कैन हेल्प यू. यू कैन इमेजिन सक्सेसेस. यू कैन इमेजिन दैट यू हैव बीन सक्सेसफुल. आप सफल हो गए हैं, और जैसी कमांड अपने माइंड को आप देंगे वैसा ही होने लगेगा. यू कैन रीफ्रेम योर नेगेटिव थाट्स. अक्सर ये होता है कि ये स्टैट्स तो मुझे आती नहीं, रिसर्च मेरे बस की बात नहीं, तो मैं नहीं, आई विल फेल इन द एग्जाम. बट यू कैन रिफ्रेम दैट नेगेटिव थाट इनटू पॉजिटिव वन, दैट आई एम ट्राइंग एंड आई विल डू इट. तो योर थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कहा गया है कि वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर एक्शंस. वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर बिहेवियर. Watch your behavior, that becomes your habit, and watch your habit, it becomes your destiny. So you are the maker of your own destiny. If you make your mind alert and for achieving the positive thoughts, then you can do whatever you like in your life. You can model, you can choose a role model in your life. You can find a person who is academically excellent or who is happy in life. You can watch the behavior कि वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, वैसे ही हम भी करें. तो you will finally find a thing which is most important in your life. You can divide your large goals into smaller ones and feel sense of accomplishment while achieving those small gains. And lastly, I would like to say that there are many exercises, meditation exercises, which can help you, or yoga which can help you, positive self-talk, it can help you. आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो बचपन में कहा जाता था ये काम ध्यान से करना. तो ये ध्यान क्या है? ये ध्यान या मेडिटेशन वो चीज़ है जो आपको अपने आप से कनेक्ट करती है. इट कनेक्ट्स यू विद योर ओन पावर्स, योर ओन स्ट्रेंथ्स. जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता है तो आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता. तो मेडिटेशन इज़ द टेक्निक विच हेल्प यू टू कैप्चर योर हैप्पीनेस इन योर हैंड, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ नॉट आउटसाइड, इट इज़ देयर इनसाइड. When we sit quietly, the crowd आप पे माइंड में चल रहा है, तो नॉइज़ चल रही है, इट cools down, and you are able to get mental clarity and focus, emotional regulation. You can manage your stress and achieve the work-life balance. So I must like to conclude because the time is less. विवेकानंद जी ने जो कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके. और आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे. बिकॉज brain is the order making machine. You have to hack the happiness chemical by changing your mind and then brain. If mind is trained, the chemicals of the brain will change. So it's not that easy, I can understand, but you have to make efforts, because अगर हम efforts करते हैं तो कहीं ना कहीं हम successful ज़रूर होंगे. और अपनी बात को मैं विराम दूंगी बस चंद शब्दों के साथ कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा. मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा. So wish you all the very best for your academic excellence and happiness. Thank you very much. Thank you, Professor Madhurima Pradhan, for an excellent talk. I think must have energized everybody with your talk. We now move over to Professor Arvind Mohan, Dean, Faculty of Arts, for his expert comments on this. Professor Arvind Mohan. Good afternoon. Respected Alok Ranjan ji, Madhurima ji, Archana ji. I've known Alok Ranjan ji for a very, very long time. Or I've been privileged. We work closely on number of assignments together. और मेरे संज्ञान में मुझे नहीं लगता कि पिछले 20 साल में उत्तर प्रदेश had a better chief secretary than Alok Ranjan ji. I've had opportunity to listen to him on number of occasions. और कोई भी विषय हो, Alok ji has always been brilliant, and so was the case today also. Truly for me, it's a matter of happiness that he is here. मेरे पास मधुरमा जी और अर्चना जी की रिक्वेस्ट आई कि I should also be part of the panel.
मेरा पहला रिएक्शन यही था कि व्हाट विल आई डू विद हैप्पीनेस। मैं आई एम प्राइमरीली एन इकोनॉमिस्ट, तो मुझे लगा मेरा क्या काम है यहाँ पर। बट देन Economics is a decimal science also. Absolutely. But then I thought that let me challenge myself. और जैसे कि आलोक जी कह रहे हैं, he has also been a student of economics like me. For many scholars, for a very, very long time, economics has been the science of happiness. बहुत लोग इसको साइंस ऑफ हैप्पीनेस ही कहते थे। स्टडी ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज वन ऑफ द मेजर अंडरस्टैंडिंग दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर सेंचुरीज, पीपल हैव कंटिन्यू टू बिलीव। और शायद यही कारण है कि हम बार बार एक मेटेरियलिस्टिक आइडिया की बात कर रहे हैं। जीडीपी फॉर एग्जांपल, हमें ग्रोथ मेजर करनी है, डेवलपमेंट मेजर करना है। टुडे वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ए हैप्पीनेस इंडेक्स। प्रॉब्ली देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि शायद जीडीपी उन तमाम चीज़ों को मेजर नहीं कर रहा। So starting from there, and given my limitations on my understanding as far as happiness is concerned, allow me to narrate two story, maybe kind of experiences. 1997 में East Asian crisis हुई. Please, I'm an economist, so please allow me to take examples from what I know. East Asian crisis हुई 97 में. At some point of time, I had opportunity. I was working for the World Bank. हम इसको evaluate करने की कोशिश कर रहे थे. It's very interesting. East Asia 1970s और उससे पहले, the East Asia means some Singapore, some Thailand, some Malaysia, some Hong Kong, some Indonesia, Taiwan. ये वो region है which was one of the poorest region in the world. 1970 के दशक से पहले this was the poorest region in the world with all kind of challenges, health, squalor, you name it, poverty, हर तरीके का challenge. This is also the time इन्होंने अपनी इकॉनमी को ओपन अप करना शुरू किया, करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी इंट्रोड्यूस की, एंड दिस इज ऑल्सो द टाइम, दिस इज अर्ली 1970s, 1970 का दशक शुरू हो रहा है। और इसी समय यूरोप, यूएस, दे आर पासिंग थ्रू माइल्ड रिसेशन. सो द big financial institutions who are holding much of global capital which is available all across the world, इनके पास अब लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट वट एवर रिसोर्सेज दे हैव इन सम यूएस और इन सम यूरोप एट्सेट्रा. सो दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, और इसी समय ये देश अपने को ओपन कर रहे हैं. सो सम रिस्क टेकिंग वेंचर कैपिटलिस्ट, दे मूव्ड इनटू ईस्ट एशिया. ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में जाते हैं और डरते डरते थोड़ा सा पैसा लगाते हैं. Soon, next year, huge growth, much more than their expectation happens. और जैसी ग्रोथ होती है, अभी तक डरते डरते लगाया था, ये और पैसा ला के लगाते हैं. एंड soon those others who were the fence hitters, उनको लग रहा था ये पहले हाथ जला लें तब हम सोचेंगे, they also think कि अब यहाँ पैसा लगाना चाहिए. ग्रोथ जर्नी की शुरुआत होती है. ईस्ट एशिया begins to rise, rise and rise. As we enter the 90s, 1990 का दशक शुरू हो रहा है. By that time, this is the most prosperous region of the world. ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है. इन 20 सालों में ईस्ट एशिया इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रिचेस्ट रीजन. कोई पॉवर्टी नहीं है वगैरह वगैरह. ये छोटी सी पॉपुलेशन के देश हैं. हम किसी सिंगापुर, किसी ताइवान वगैरह की बात करें, लीव असाइड इंडोनेशिया, दे आर ऑल वेरी स्मॉल पॉपुलेशन कंट्रीज. सो दे आर ऑल बीइंग डेवलप्ड एज ट्रेड सेंटर्स. ये सारी दुनिया को, हिंदुस्तान को, चाइना को, अमेरिका को, सबको बेच रहे हैं. ये जब ट्रांजिशन होना शुरू होता है, व्हाट इज हैपनिंग? एवरीथिंग इज चेंजिंग. सिर्फ इनकम लेवल्स नहीं चेंज कर रहे, हेल्थ लेवल्स चेंज हो रहे हैं, पॉवर्टी चेंज हो रही है, लिविंग कंडीशंस चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है. व्हाट इज चेंजिंग इज फील गुड फैक्टर इज चेंजिंग. और ये फील गुड फैक्टर है जो एंकरेज कर रहा है ऑल अदर इन्वेस्टर्स को. ये पूरी स्टोरी ट्रांसफॉर्म हो रही है. सडनली वन फाइन मॉर्निंग, समवेयर अराउंड 1970s इटसेल्फ, चाइना ने अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू किया. उनका रिफॉर्म हमसे डिफरेंट था. उन्होंने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किया और फिर इंडस्ट्री की तरफ आ गए. सून, अभी तक चाइना, इंडिया इनके सबसे बड़े बाजार हैं, अलॉन्ग विद यूएस एंड लैटिन अमेरिका एंड एवरीवेयर. बहुत जल्दी चाइना इनके मार्केट के रूप में इनसे बाहर हो गया.
91 में इंडिया ने भी रिफॉर्म कर दिया, हम भी बाहर हो गए। सून चाइना ने वहाँ compete करना शुरू किया दूसरे बाज़ारों में जहाँ ये अपना सामान बेचते थे। अब एक सीलिंग सी आ गई। अभी तक क्या हो रहा था, स्टार्टिंग 1970 एवरी न्यू ईयर द ग्रोथ वॉज राइजिंग एंड राइजिंग एंड राइजिंग फास्टर देन द लास्ट ईयर। फील गुड फैक्टर इंप्रूव होता जा रहा है। सडनली दे आर हिटिंग अ सीलिंग। अब जो ग्रोथ रेट डबल डिजिट चल रही थी वो एकाएक रुकती है, अब वो 1-1.5%, अभी भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, बट द फील गुड हैज़ चेंज्ड। नाउ एवरीबडी इज वेटिंग। सडनली करेंसी क्राइसिस होती है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द रीजंस फॉर दैट करेंसी क्राइसिस। वो एक ट्रिगर देता है, फील गुड ऑलरेडी बिगड़ गया है, सडनली अब जो इन्वेस्टर है ये वहाँ से भागना शुरू करता है। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस टू हैव हैपेंड ऑन द फेस ऑफ द वर्ल्ड। 1990s के शुरुआत में द फर्स्ट मिरेकल टू हैव हैपेंड ऑन द फेस ऑफ एशिया हैपेंस। 97 में ये स्टोरी बस्ट करती है और फिर चीज़ें नीचे जाना शुरू करती हैं। द हैप्पीनेस इज डाउन एंड सो इज एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सब चीज़ नीचे जाना शुरू करती है। दिस ओनली शोज कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये जो फील गुड है, ये क्रिटिकल है हमारी हैप्पीनेस। ये पहला पार्ट है। This is the first story that I wanted to share with you. Allow me to come to this second story, which is again coming from my personal experience. Once upon a time, मैंने इसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया, ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक किया। 21-22 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप यहाँ पढ़ाने लगिए। मैं यहाँ अपॉइंट हो गया, पढ़ाने लगा। मुझे लगा कि बहुत इकोनॉमिक्स आ गई मुझे। अब तक मुझसे ज़्यादा किसी को नंबर नहीं मिले इस यूनिवर्सिटी में। बट दैट वॉज अ मिथ। मैंने इकोनॉमिक्स सीखी आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए, इन माई क्लासेस। वॉट एवर इकोनॉमिक्स आई नो टुडे इज सिग्निफिकेंटली नॉट वॉट आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन आई वॉज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन। नो, आपके साथ इंटरेक्ट करके सीखी। और कैसे सीखी? सी, आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू चैलेंज माई स्टूडेंट्स. I've always tried to challenge myself also in my classes. Challenge meaning what? First day when I interact with my students, I tell them, please raise your hands, ask questions. I don't want कि आप मेरे लेक्चर के आखिर तक रुकें. Please don't. आपको ये भी लग रहा है कि पता नहीं आप सवाल ठीक पूछ रहे नहीं पूछ रहे, don't wait. Allow me to judge आपका सवाल ठीक है कि नहीं. आप अगर सब चीज़ जानते होते तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी. एंड आई विल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस, आई विल वांट आंसर्स. गलत आंसर हो, आई हैव नो प्रॉब्लम. सी, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लर्निंग इज़ अ ट्राइड. ये एक ट्राइड है. एक एंड पर आप हैं, एक एंड पर मैं हूँ, और एक एंड पर वो डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है. ये जो इंट्रैक्शन है एरिस्टोटल के टाइम से, ये जो डायलॉग है ना, इसी ने दुनिया की नॉलेज को आगे बढ़ाया. और ये ट्राइड बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एक एंड पे आप ग्रो करते हैं, दूसरे एंड पे मैं ग्रो करता हूँ, और तीसरे एंड पर ये नॉलेज ग्रो करती है. ये नॉलेज हमारे आपके जैसे लोगों ने ग्रो कराई है. और ये जो ट्राइड है ये बहुत क्रिटिकल है. और जब when this happens, when you are challenged, I am challenging you, you are challenging me, it allows me to think. For me, my classes have been meditation for me. मैंने लगातार, there have been occasions, लगातार कई घंटे की क्लास ली, मुझे कभी थकान नहीं हुई. Because truly speaking, my classes for me have been meditation for me. और मैं for a long time 2007 से मैं IIM लखनऊ के लिए भी एडजंक्ट फैकल्टी था. अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे भी आलोक जी नरेट भी कर रहे थे. There have been occasions, some of my students in my classes, some of them, they decided that they want to pursue economics. It can be so fascinating. So classroom is an experience in itself. ये वो laboratory है जहाँ से हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट है. आपका अपना एक्सपेरिमेंट है, एज अ टीचर मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है, और इस डिसिप्लिन का सब एक्सपेरिमेंट है. यहीं से ग्रोथ है, यहीं से ये बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस हो सकता है. मेरे लिए दिस हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर माई लाइफ. मैं कितना भी बिजी हूँ,
डीन आर्ट्स इज़ अ वेरी बिजी ऑफिस, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे लेक्चर ज़रूर होने चाहिए. कभी कभी मिस करता हूँ, आई ट्रूली मिस इट. ये मेडिटेशन का प्रोसेस है, ये हैप्पीनेस का प्रोसेस है. एवरी टाइम व्हेन आई इंटरेक्ट विद यू इट एड्स टू माई हैप्पीनेस. और मेरा ऐसा मानना है कि माई स्टूडेंट्स मस्ट ऑल्सो बी फीलिंग, कहते तो यही है, बाद में मैं मान भी लेता हूँ कि शायद यही है कि उनका भी एक्सपीरियंस है. इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस फॉर देम. तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ना, ये अपने आप में इससे बड़ा हैप्पीनेस का कोई सोर्स नहीं हो सकता. तो 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. योर एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहला आपको एग्जांपल दिया. निश्चित तौर पर जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक आइडिया नहीं है, ये हमारी हकीकत है, हमारी लिविंग कंडीशंस के लिए इंपॉर्टेंट है. ये जो फील गुड है, और हमेशा फील गुड बहुत ज़्यादा होने से नहीं होता है, जो फील गुड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऐड करता है. और ये जो दूसरा पार्ट है जिसके आप इंटीग्रल पार्ट हैं, जो दूसरी स्टोरी मैंने नरेट की, ये हमारी हैप्पीनेस को, हमारी लॉन्गेविटी को और हमारी लर्निंग को पूरी तरह चेंज. ये जो एनवायरनमेंट है जिस क्लासरूम को मैंने नरेट किया, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ आप लर्न करते ही हैं, आपको नींद नहीं आ सकती है वहाँ पर. यू विल ऑलवेज वांट, यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंट्रैक्शन. और ये जो एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ चेंज कर देता है. तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपको खुद हिस्सा होना पड़ेगा उसका. निश्चित तौर पर इसमें 3 एंड हैं और 2 बहुत एक्टिव एंड हैं. एक स्टूडेंट्स हैं और दूसरे हम, और हम दोनों की ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है. यू विल हैव टू पार्टनरेट एंड एज टीचर्स वी विल हैव टू पार्टनरेट. किसी न किसी को शुरू करना पड़ेगा. मुझे लगता है आई ऑलवेज फील ट्रूली blessed and privileged that I am part of this story. Thank you so much. Professor Arvind Mohan, thank you very much for such an enlightening talk. I think all the 3 speakers have put forward their views, or I have also put forward what I had to say. Let me now open it to the house for discussion, question, interaction, whichever way you want to look at it. Yes, please. Anybody, yeah. Please, go ahead. Sir, as you have said that the achieving the success only provides a transient happiness, and the real happiness lies in the process of achieving that goal or that particular thing. So, sir, how can an individual can create happiness in the process? As we always hear such lines that सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो उस सफ़र में कैसे वो हैप्पीनेस बनाई जा सकती है, जबकि आज की अगर एक बच्चे की मानसिकता को समझा जाए तो उसमें देयर आर plenty of things that are affecting the particular individual who are in the process. As sir have said of the environment causes, there are certain obligations, there are certain work-life balances, there are certain careers which we are pursuing, and we have to create the balance of all the things, and then maintaining that balance in particular thing, and how then we can create the happiness in the process. Actually, happiness has to be created in the process itself. I'll tell you why. Because if you link it only with the destination, that see it's a journey and then the destination. If you say happiness is only the destination, then it becomes very difficult, because in life, my experience has been, and you'll also face it, that destination keeps changing, you know. Like when you are a student, then you say I want to do very well in the class, I want to get first division, or I want to get the top rank position or something. That becomes your goal. The moment you achieve that, then the goal shifts further. Then you say I want to get into UPSC, or get into civil service, or I want to get into the corporate sector, MBA, management, this, that, whatever is your goal. Moment you get that, then the next goal is about your career. I want to get a job in a good job, assignment, a good job, a good career prospects. Then how I must reach to the top of my career, I must the top management, or become the chief secretary, or CEO, or whatever it is. The goalpost keeps shifting continuously, and in this way, if it keeps shifting continuously, तो अगर आप खाली गोल पोस्ट पे ही फोकस करेंगे तो आपको खुशी कभी मिलेगी ही नहीं लाइफ में. इफ यू वांट हैप्पीनेस, देन यू शुड एंजॉय दैट जर्नी, दैट प्रोसेस ऑफ अचीविंग इट. दैट इज बाय लिविंग इन दैट प्रेजेंट मोमेंट. While you are saying studying in the psychology honors, you must enjoy that subject fully. Enjoy getting as much knowledge as you want to get out of it. Try to do as well as possible. और उसमें जितनी हैप्पीनेस निकाल सकते हैं, जो प्रोसेस आपने कहा,
उसमें आप निकालिए, टेक इट आउट. द आइडिया इज बेसिकली टू लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट जस्ट कीप समथिंग वेरी डिस्टेंट इन द गोल इन द फ्यूचर, कि वो जब मिलेगा तब खुशी मिलेगी. वो जो उसको ढूंढता रहेगा उसको खुशी कभी नहीं मिलती, क्योंकि वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका गोल हो, आपको मिले या ना मिले, इट इज ऑल्सो पॉसिबल. बट इवन देन इफ यू एंजॉय द जर्नी एंड द प्रोसेस यू विल बी हैप्पी. व्हाट इफ आई एम स्ट्रेसिंग ऑन हैप्पीनेस. तो प्रोसेस इसी को कहते हैं और उसको करने के तरीके हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज माइंडफुलनेस. बी माइंडफुल ऑफ योर प्रेजेंट सिचुएशन. उसके लिए चाहे फोकस करिए, चाहे मेडिटेशन करिए, चाहे अपनी थॉट्स को कंट्रोल करिए, which इमोशंस को कंट्रोल करिए, whichever way you want to look at it, but this is the way of looking at it. So enjoy the journey, enjoy the process. That is very important. Sir, actually, I wanted to ask certain questions that sometimes we cannot achieve the goals and there are failures in our life, and then the process becomes recurring and sort of boredom or monotonous is being created in that process. Then these exercises will help in that process. It will because failure तो मिलता ही मिलता है. इतना आप समझ लीजिए कि दुनिया में आप किसी से भी बात कर लीजिए, जो प्रधानमंत्री भी बन गए होंगे या प्रेसिडेंट बन गए होंगे या कुछ भी फेमस नोबेल प्राइज विनर भी हो गए होंगे, इफ़ यू आस्क देम और एनीबॉडी यू विल फाइंड दैट दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन देयर लाइफ. और वो वही आदमी आगे बढ़ता है जो फेलियर को फेस करना जानता है. एंड इट्स नॉट द क्वेश्चन एज समबडी सेड हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल डाउन, बट इट्स द क्वेश्चन ऑफ हाउ यू गेट अप एंड मूव फॉरवर्ड. नो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो जो रेजिलियंस चाहिए ऑफ गेटिंग अप एंड मूविंग फॉरवर्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फेलियर तो आप मान के चलिए कि मिलेगा. एंड इन फैक्ट यू शुड वेलकम फेलियर्स. यू शुड वेलकम फेलियर्स बिकॉज थ्रू दैट यू विल लर्न, यू विल ग्रो. उसमें ग्रोथ होती है कंटिन्यूसली. फेलियर अगर आप इमेजिन करिए ऐसी सिचुएशन की फेलियर नहीं मिल रहा है, तो आप फाइंड करेंगे कि आप आफ्टर सम टाइम यू विल स्टॉप ग्रोइंग ऑल्सो. एंड इफ योर ग्रोथ इज नॉट देयर देन यू डोंट एंजॉय लाइफ. द होल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ और द हैप्पीनेस पार्ट ऑफ इट इज व्हेन यू आर ग्रोइंग ईच डे, मूविंग फॉरवर्ड each day, and that will happen when you face this failure. तो failure से आप बिल्कुल परेशान ना होइए. failure तो बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन अगर आपका attitude सही है on tackling that failure, you will certainly be able to handle it. Thank you so very much, sir. I would like to add, sir. Suppose that you are doing a PhD, ना? तो जब आप MA कर रहे थे तो देयर वर मेनी असाइनमेंट्स गिवन, प्रोजेक्ट्स गिवन. सो आप उस समय जब असाइनमेंट कर रहे थे तो यू पुट योर क्रिएटिविटी इन दैट असाइनमेंट. अभी मैंने देखा आज न्यूज़पेपर में कि कुछ लोग असाइनमेंट करा रहे हैं जो रील बन रही हैं उस पर, कुछ वीडियोज़ पे. तो हाउ मच क्रिएटिव यू आर एट प्रेजेंट, बिकॉज फ्यूचर अभी आया नहीं है, पास्ट अभी गुजर गया, वो आपके हाथ में नहीं. तो प्रेजेंट काम जो कर रहे हैं आप, उसको कितनी क्रिएटिवली आप कर रहे हैं, कितनी एंथुजियास्टिकली कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, right? And I will share my experience that when I was teaching psychology, I was thinking that there is something missing in that concept, the Indian concept are missing. Then I thought that whatever project I did with UGC, I tried to establish that laboratory. That, as sir also said, that the life is a laboratory. You have to do experiment on your own self. How much you can learn in each and every moment, because each moment can teach you a lot. अगर आप उस मोमेंट से कनेक्ट करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं. आगे क्या होगा आपको पता नहीं. जैसे सर ने कहा कि आपका गोल चेंज हो सकता है. आप लोगों ने क्वालिटेटिव रिसर्चेस में ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा कि एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया, थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया, फिर आपको लगा कि आपका जो प्रॉब्लम चूज़ करी थी इट हैज़ टू बी रीडिफाइंड. तो ईच मोमेंट यू चेंज, व्हेन यू कम विद द फ्लो ऑफ द इवेंट देन यू ग्रो. So with the growth mindset, you just have to be mindful to be happy and satisfied in love. वो पल आपका मजबूत और complete होना चाहिए जो आप जी रहे हैं. Thank you. मुझे आपकी बात से एक बात याद आ गई. आपको शिमला जाना है, मैं तुरंत आपको यहीं से किसी तरह उठा करके और शिमला के माल रोड पर प्लेस कर दूं, तो खुशी मिलेगी शिमला जाने की. असली मज़ा तो वही है कि ट्रेन में खाते चले, संग में समोसे लिए, चिप्स लिए, कुछ सामान छूट गया, कोई रह गया, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर वो जो ड्राइव हुई उसमें बहुत सारा कुछ हुआ. तो प्रोसेस में ही असली मज़ा है. और एक्चुअली शिमला पहुंचने की खुशी उस प्रोसेस से ही है. शिमला तो सेकेंडरी है, वो तो शिमला चले जाइए, कोई भी माउंटेन क्लिफ पे चले जाइए, और जो पूरा प्रोसेस है ना वो असली मज़ा है. तो जीवन में जब आपने प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर दिया तो जैसे सर ने बोला डेस्टिनेशन बिकम सेकेंडरी. और अब जैसे 3 Idiots में भी कहा गया और सर ने भी इस बात को कहा कि जब आप खुश हैं, आप काबिल हैं, तो फिर सक्सेस और हैप्पीनेस, सक्सेस तो पीछे आएगी ही आएगी. तो मेरे ख्याल से द प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Anybody else? Yeah. Thank you.
हाँ प्लीज़ बोलिए। नमस्कार सर एंड मैम। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि साइकोलॉजी में हम सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे सोसाइटी, इन्वायरमेंट, फैमिली और इन सब का रोल देखा गया है हमारी खुशियों में, जो कि बेसिकली हैप्पीनेस की बात हम कर रहे हैं आज। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि अटैचमेंट्स का क्या रोल है हैप्पीनेस के ऊपर? क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में किसी पर्सन को, या कोई भी है, जब लॉस होता है, जब वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं, तो बेसिकली हम उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं कि अब वो तो पर्सन है नहीं या चला गया लाइफ से। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसका होना हमारे लिए ज़रूरी है, वो पर्सन हमारी खुशियों को अफेक्ट करता है। ये हमारी थिंकिंग बन चुकी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी लोग जो मेरे साथ के हैं उन्हें भी लगता होगा, सबके रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, दोस्त हैं, एंड उन्हें भी लगता है कि दोस्ती सब है या रिलेशनशिप सब है। तो आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन कि अटैचमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली बहुत ही ऐसा आपने बहुत ही गंभीर विषय जो आपने है उठा दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। यू सी, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आप में एक बहुत सोशल एनिमल है, एंड हिज लाइफ इज गवर्न्ड बाय हिज रिलेशनशिप्स, by with his friends, with his family, with others in society in various form, जिससे भी interact करता है सोसाइटी में. The relationships determine how he lives his life and how he is happy with it. लेकिन आपने उसके साथ जो दूसरी चीज़ जोड़ी वो बहुत महत्वपूर्ण है. You talked about the attachments that you develop with people, like अपने पेरेंट्स के साथ है या फ्रेंड्स के साथ है या किसी और के साथ है जो आपका कोई किसी फॉर्म में आपसे जुड़ा हुआ है. You are attached personally and emotionally with that person, and it is natural only. We are human beings, we are emotional beings, and we would be attached. तो अटैचमेंट होने के बाद जब वो कोई दुनिया से चला जाता है या कुछ हो जाता है तो दुख वो ज़रूर होगा. जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आपको दुख ही नहीं होगा कभी. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. दुख तो होगा और दुख होना भी चाहिए. अनप्लेजेंट इमोशंस भी आते हैं, दुख के इमोशन भी आते हैं. जब कोई बहुत नज़दीक का व्यक्ति आपके पास से चला जाता है, दुनिया से चला जाता है, यू विल मिस दैट पर्सन. यू विल, इफ़ यू डोंट, देन यू आर मेड ऑफ स्टोन. इट इज़ नॉट दैट. यू विल मिस इट, यू विल फील सैड ऑल्सो. वो भी फील करना चाहिए और कुछ देर तक आपको दुख महसूस भी होगा. ओनली थिंग देन इज़, जो हम हैप्पीनेस की, जब ओवरऑल हैप्पीनेस के लेवल की बात करते हैं, वो कहते हैं कि उसके बाद आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है, हाउ आर यू एबल टू कोप विद दैट. एक तरीका हो सकता है कि आप उससे कोप बिल्कुल नहीं कर पाए और आप बिल्कुल दुख में बिल्कुल डूब गए, और इतना डूब गए कि फिर आप मेंटल हेल्थ का इशू आपके लिए हो गया. यू गो इनटू सीरियस डिप्रेशन, बीमार हो गए और आपकी खुद की ज़िंदगी तबाह हो गई उसमें. दूसरा ये हो सकता है, आफ्टर सम टाइम यू हैव दैट कोपिंग मैकेनिज्म इनसाइड यू कि आपने उससे कोप कर लिया. यू एक्सेप्ट दैट आफ्टर सम टाइम कि ठीक है, ये हुआ है, ऐसी चीज़, दुख हुआ है, बट देन अगेन यू आर एबल टू रीफोकस ऑन योर लाइफ और रीलिव योर लाइफ. तो जो अगर कोपिंग मैकेनिज्म आपका अच्छा है तो आप उसको कर सकते हैं. और अटैचमेंट तो इमोशनल लोगों से होता ही होता है, उसको कोई वो बात नहीं है, उसको दूर नहीं करा जा सकता है. बट देन यू एज यू मूव फॉरवर्ड, इफ़ यू कैन कोप विद दीज थिंग्स प्रॉपरली. ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है वैसे हैप्पीनेस की, जहाँ भी बात करी जाती है कि नियर एंड डियर आदमी की डेथ हो जाए तब आप हैप्पीनेस कैसे महसूस कर सकते हैं. बट देन यू टेक इट ओवर अ स्लाइटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. आपको इमीडिएटली तो दुख होगा ही होगा, बट ओवर आफ्टर सम टाइम हाउ यू रिकवर फ्रॉम दैट दुख एंड हाउ यू मूव फॉरवर्ड, तो वो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. आप बताइए. आपने बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है. इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है लंबे समय तक, लेकिन वक्त थोड़ा कम है. हमारी जो माइथोलॉजी इससे जोड़ती है इस चीज़ को कि आप अपने आप को क्या मानते हैं. हु एम आई, हु आर यू, आप कौन हैं और इस दुनिया में क्यों आए हैं. तो आप एक मकसद लेके आए हैं और उस मकसद से आपको जुड़ना है. सुख दुख आते रहते हैं, हानि लाभ, सफलता असफलता आती रहती है. ये सब लहरें हैं, जैसे कि समुद्र में लहरें आती हैं लेकिन अंदर उसमें गहराई रहती है. तो अपने मन की जो प्रसन्नता है वो आपकी अपनी है. ये बाहर की जो चीज़ें हैं हो रही हैं, इनको एक साक्षी भाव से अगर आप देखते हैं कि ठीक है मुझे दुख हो रहा है, होना आवश्यक है क्योंकि समय की डिमांड है. अगर इतना क्लोज व्यक्ति है जो आपसे जुड़ा रहा है तो दुख होना स्वाभाविक है. एंड यू हैव टू बी सेल्फ कंपैशनेट. अपने ऊपर इतना अत्याचार भी मत करो कि रो भी ना पाओ. रो, क्योंकि आप रोगे. ये एक ह्यूमन बीइंग है, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ वुड. बट अपने को वक्त दो और धीरे धीरे कैसे आप कोप कर सकते हैं उससे निभरो. तो ये कहा गया कि बहुत सुख दुख में समान, बैलेंस. तो हर चीज़ जब बैलेंस में रहती है तो बहुत ज़्यादा सुख नहीं, बहुत ज़्यादा दुख नहीं, इसीलिए बैलेंस की बात की गई है. हालांकि ये बहुत ऊंची अवस्था है, इसको प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बात वही आती है माइंड मैनेजमेंट की कि अपने माइंड को आपने कैसे प्रोग्राम कर रखा है. जो लोग हैं वो आपके मित्र हैं, क्लोज वंस हैं, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए इस दुनिया में आए हैं? आप भी कुछ समय के लिए आए हैं और वो भी कुछ समय के लिए आए. किसी ना किसी बहाने से जाना ही पड़ेगा. ये एक सच है और इसको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें
उतना ही अच्छा। बात रही रिश्तों की, तो रिश्ते भी परमानेंट नहीं हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप जैसा अगर किसी के प्रति पैशनेट है तो वो भी आपके लिए होगा। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ्स। थैंक यू। वैसे तो सब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया है, बट सी हमने सोशल अरेंजमेंट्स बनाए। एक तो हम आईक्यू के अलावा अब ईक्यू की बात करने लगे, इमोशनल क्वोशेंट। तो इमोशन तो है और रहेगा, जैसा आलोक जी ने भी कहा, मधुरमा जी ने भी कहा। लेकिन हमने सोसाइटी में तमाम व्यवस्थाएं बनाई। वन ऑफ देम इज़ गॉड, अनदर इज़ फैमिली। देखिए सब चीज़ें इंडिविजुअल्स, ये सब क्षणिक है। हम आप आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन ये जो व्यवस्था है ना, मुझे लगता है रिलीजन की कोई और रेलेवेंस हो ना हो, ये रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। आपको किसी एक ऐसी चीज़ में भरोसा है जो हमेशा है, क्यों? बिकॉज इट इज़ योर बिलीफ, और ये आपको स्टेबिलिटी दे देता है। एंड सो इज़ द फैमिली। तो ये शायद हमारी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पर्सन के अलावा भी किसी और चीज़ में भी आस्था रख रहे हैं। ये शायद मुझे लगता है रिलीजन का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शायद हमने बहुत चीज़ें गड़बड़ कर दी होंगी, बट दिस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक स्टेबिलिटी देता है, हमें इन चीज़ों से निकलने का मौका देता है। इट इंश्योर्स दैट वी रिमेन हैप्पी। मेरा एक आखिरी सवाल है। मैंने बहुत से मतलब डिस्कशंस पैनल वगैरह अपार्ट फ्रॉम देखे हैं। लोग वहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं, इंडियन माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मीन्स बेसिकली मिथ। आई थिंक मैं करेक्ट होगा, गलत हो तो मुझे कोई बता देना कि सही हो कि नहीं। तो क्या मिथ्या पे यकीन करना सही है कि नहीं? दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच। जो बात मैंने अभी कही, देखिए टू मैनी इवन गॉड में बी अ मिथ। हमें नहीं पता, ये हमें मालूम है कि कोई शक्ति है जो शायद सारी दुनिया को चला रही है। बाकी ज़्यादातर चीज़ें जिसको हम गॉड कह रहे हैं सब माइथोलॉजी पर ही तो आधारित है। तो ये अच्छा बुरा बहुत कंटेक्चुअल है। आप उसको मिसयूज़ करना शुरू करें तो शायद वो बहुत बुरा है, लेकिन उसका जो सही रेलेवेंस, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, मुझे लगता है उसकी बहुत रेलेवेंस है। पर्टिकुलर गॉड थे कि नहीं थे, द्वारिका नगरी थी कि नहीं थी, पता नहीं। ज़्यादा चीज़ों की हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, बट द माइथोलॉजी एसोसिएटेड विद इट, इट इज़ देयर, इट सर्वाइव्स। उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। सर सॉरी, बट आपने आइडियोलॉजी टर्म भी सुना होगा। इसके टर्म्स में अगर मैं बोलूँ इंडियन आइडियोलॉजी, तब इसका क्या मतलब होगा? आपने माइथोलॉजी की बात करी, तो माइथोलॉजी और मिथ दोनों में अंतर है। जो आपने कहा कृष्ण थे या नहीं थे, तो देर आर एविडेंसेस। जो आपके स्क्रिप्चर्स हैं उसमें एविडेंसेस हैं कि कृष्ण थे और हनुमान, जो राम सेतु था। तो हम ये नहीं कहते कि ये सब माइथोलॉजी है या आपको विश्वास करना ही चाहिए। ये सिर्फ श्रद्धा की चीज़ें हैं, और अगर वो श्रद्धा या विश्वास आप रखते हैं तो उसका एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट आपको मिलता है। वो ये कि जैसे आप छोटे होते हैं तो मदर आपको सिक्योरिटी देती है। आप कहीं भी, बच्चा बाहर जाता है वो मुड़ के देखता है माँ है कि नहीं, और माँ है तो वो खेलता है। इसी तरह से अगर हमें विश्वास होता है कि एक डिवाइन पावर है, तो वो आपको एक प्रोटेक्शन देती है। आप नेचर को देखिए, कितने सुंदर सुंदर फल, इतनी फूल, इतनी बहती हुई हवा, ये इंसान नहीं बना सकता। कैसे चल रहे हैं ये तारा मंडल, सूरज रोज़ निकलता है, एक निश्चित समय से निकलता है, आपको रोशनी देता है, हवा बहती है, पानी है। तो ये नेचुरल जो चीज़ें जब आप देखिए तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितने सुंदर सुंदर फ्रूट्स, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है। संतरा देखा है आपने, कैसे वो पैक होता है छोटा सा। तो ये सब किसने बनाया? तो जब आप सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप उससे कनेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी पर्टिकुलर गॉड को मानिए, बट एक डिवाइन पावर है और उसके एविडेंसेस हैं बहुत सारे। इस पर बहुत बोला जा सकता है घंटों, बट समय कम है, तो बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगी। थैंक यू। प्लीज़। मैं ऐड करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस कि बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, मुझे पकड़ो तो जाने। मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा ये बाल पकड़ लिया, मुझे पकड़ो तो जाने। दिस इज़ द रियल ट्रुथ एंड रियल लाइफ, जिससे आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। और ये क्वेश्चन आपके मन में जब आ जाए तो हैप्पीनेस
अवश्य मिलनी ही मिलनी है। थैंक यू सो मच। Thank you. Or anybody else, please? Yeah, please. Go ahead, please. Good evening, sir. Good evening, everyone. It's not a question. I just want to share my own experience. And I feel, and I communicated at many times, that happiness is also associated with kindness. If we are kind, kind for anyone, for nature, for even a cheetah, चिड़िया, तो भी हमें हैप्पीनेस है। और जो एक सबसे बड़ी बात है कि आज के वक्त में हम काइंडनेस को भूलते जा रहे हैं। सो वेन एवर आई गो एंड मीट स्टूडेंट्स, आई टेल देम कि आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ अपने घर में माँ से कोई पुराना बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी भर के बाहर रख दीजिए, कोई भी एनिमल पिएगा, आप देखेंगे आपको इतना सुकून मिलेगा, वो खुशी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। या छत पे रखाइए और चिड़िया पिएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो मे बी काइंडनेस इज़ वन थिंग। हम निस्वार्थ जब किसी के लिए करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। सो हमें और चीज़ों में न ढूंढ के अगर इन चीज़ों में हम खुशी ढूंढें तो बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। Absolutely, I agree what ma'am is saying. Actually, kindness and generosity are very essential attributes of happiness. In fact, if you want to practice how to be happy, it is said that the things you should do is every day do 3 acts of kindness and 3 acts of generosity. इसको अपने जीवन में लाइए, कोशिश करिए सुबह से उठने के बाद और शाम तक जब आप सोने जाते हैं, try and do at least 3 acts in you have to of kindness to others and 3 acts of generosity. और रात में अपने जर्नल में इसको लिख लीजिए। If you keep doing this exercise, you will find that this by itself will make you happy. Because happiness comes by doing things for others, as ma'am has said just now. Happiness does not come if you only live for yourself and only do things for yourself. But happiness comes when you think of others and do things for others. और जैसा मैम ने बहुत सही कहा है, काइंडनेस और जेनरॉसिटी, और उसके आगे मैं एक और वर्ड बोल दूंगा, जोड़ दूंगा, ग्रेटिट्यूड। बहुत ज़रूरी है हैप्पीनेस के लिए। सुबह उठ के कम से कम भगवान को अगर एक बार इस बात के लिए भी ग्रेटिट्यूड दे दीजिए आप कि थैंक यू गॉड दैट आई एम अलाइव टुडे, दैट अपने आप में ही बड़ी भारी चीज़ है, बिकॉज वो उसमें आपके हाथ में नहीं है। दैट यू मे और एनी वन ऑफ अस मे बी अलाइव टुमारो इज नॉट इन आवर हैंड्स, इट इज़ इन समवन एल्सेस हैंड्स। तो वो भी अगर होता है तो उसके लिए भी अगर ग्रेटिट्यूड हम महसूस कर लें एवरी मॉर्निंग, सो दीज आर मैजिकल वर्ड्स, काइंडनेस, जेनरॉसिटी, ग्रेटिट्यूड, दिस इज फॉर हैप्पीनेस। Anybody else, or shall we call it a day? हाँ, please, sir, please. कि मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में कोई ऐसी जैसे कॉन्टीन्यूस हेडेक रहता है या कॉन्टीन्यूस कुछ और तकलीफ ऐसी बचपन से ही हो गई है, और he wants to be happy and he wants to study and become a great man in the country, तो उसके लिए क्या साइकोलॉजी कहती है या क्या होना चाहिए उसके? बात आपने बच्चे की और इस डिपेंड करेगा कि वो बच्चा कितना बड़ा हो गया है और हम किससे बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, अगर क्लास 6 का बच्चा है, छोटा है, तो हमें उसको वक्त देना पड़ेगा और बहुत अफेक्शन और प्यार से उसकी केयर करनी पड़ेगी, जिससे कि जो पुराना उसका जो भी उसके साथ घटित हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। वो डिपेंड करेगा किस इंटेंसिटी का हर्ट उसको हुआ है, तो उसके लिए हमें उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और उससे ज़्यादा उसके पेरेंट्स की और उसके केयर गिवर्स की, कि वो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं और पुरानी चीज़ें जो उसके मन पे एक घाव लगा है उसको हील करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो विल हैव टू टेक सर्टेन काउंसलिंग सेशंस एंड 1-to-1 काउंसलिंग इसमें की जाएगी, जिसमें कि जानने की कोशिश की जाएगी कि जो हर्ट हुआ वो किस परिस्थिति में हुआ और कितना इंटेंस था, उसकी इंटेंसिटी क्या थी। और बहुत थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, और पेरेंट्स के लिए ज़्यादा हम इसमें कहेंगे क्योंकि छोटा बच्चा है तो वो बच्चे की तरह बिहेव करेगा, बट पेरेंट्स को थोड़ा सॉफ्टली कंपैशनेटली उसको देखना पड़ेगा। उसको कोई ऐसी बीमारी होगी, मतलब किसी वजह से, सर प्लीज़ माइक ले ले प्लीज़। किसी वजह से हर्ट नहीं हुआ, उसको बचपन से मान लीजिए ऐसा एक्यूट हेडेक होने लगा,
एंड डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि हाँ इसको फला ऐसी इनक्योरेबल टाइप की डिजीज़ हो चुकी है, तो क्या वो फैमिली के रिलेशन से नहीं होगा? इट हैज़ गॉट सम कनेक्शन विद दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ओके, अगर बात करने की डिजीज़ कोशिश की बात है तो डिजीज़ मेडिकल तो उसका ट्रीटमेंट होगा ही, लेकिन जो उसके केयर गिवर्स हैं वो उसको स्पिरिचुअलिटी से इस तरह से जोड़ेंगे कि भाई ये बच्चा मिला है, मान लीजिए कोई बीमारी है तो ये बच्चा क्यों मेरे जीवन में आया, हो सकता है इसके पीछे कुछ पर्पज़ हो, मुझे इस बच्चे को देखना है, मुझे इस बच्चे की केयर करनी है। हो सकता है कुछ, अब हम लोग जैसे कि हमारी मैथोलॉजी में पास्ट कर्म की बात कहते हैं, हो सकता है कुछ बैगेज हो, देन वी हैव टू फिल। तो वो एक पॉजिटिव आस्पेक्ट देख के कि हमें उसके लिए कैसे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इन्हेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम है अगर इनक्योरेबल है तो वॉट एवर डेज आर देयर विद द चाइल्ड शुड फील हैप्पी और वो संतुष्ट रहे और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ दिए। तो इसके लिए काउंसलिंग करना पड़ेगा। थैंक यू जी। सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि 6th क्लास का बच्चा है तो थोड़ी बहुत समझ ज़रूर रखने लगा होगा अपनी बीमारी के बारे में, अपनी दिक्कत के बारे में। हम सब कम से कम एज़ पेरेंट्स, एज़ गार्जियंस बच्चे को ये थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से हल्की फुल्की भाषा में ओरिएंट कर सकते हैं कि ये जो भी तुम्हारे संग बीत रहा है ये कोई अल्टीमेट वो नहीं है। हम सब के जीवन में कुछ पैचेस होते हैं, ग्रे पैचेस होते हैं, कभी उतार चढ़ाव होते हैं, तो इसको तुम अपने ऊपर मत ओढ़ो कि ये बीमारी तुम्हारा अस्तित्व है या ये बीमारी तुम हो। तुम इसमें रहकर भी एक लिमिटेड उसमें जो भी तुम कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो तुम्हें पसंद हो, ड्राइंग है, बहुत सारे आजकल ऑप्शंस चले हैं, उस तरह उस बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। और मतलब ऑब्वियसली काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसको थोड़ा जीने से लगाव या जीने मतलब ज़िंदगी से प्यार डेवलप कर सकते हैं। उसको मैं इसके फेवर में रहती हूँ कि बच्चे को हम ये समझाएं और ये बताएं कि ये तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है, लाख वो इनक्योरेबल हो, लेकिन ये बताना है कि ये सब एक फ़ेज़ है और इस फेज़ में ये तुम्हें दिक्कत हो रही है या ये प्रॉब्लम हो रही है, पर इसके संग रहकर भी और एक्सेप्ट करके भी तुम ज़िंदगी जी सकते हो। तो मुझे लगता है जीने की आस जगाना, मेरा अपना मानना है कि ये जीवन में सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। माय नेम इज़ शिशिर जिंदल, आई एम सीनियर मेंबर ऑफ लखनऊ मैनेजमेंट। मैं अपनी फैमिली का शेयर करना चाहता हूँ और मैंने LMA के ग्रुप में भी शेयर किया था, आपने भी अप्रिशिएट किया था। हमारी फैमिली में हियरिंग डिसेबल्ड बच्चा है, मेरा भतीजा, और शुरू से मतलब हम लोगों ने उसको मतलब खूब पैम्पर किया, भाई कुछ करना है। हम लोग भी कभी दुखी नहीं हुए कि भाई ये हियरिंग डिसेबल्ड है तो दुखी हो जाते, तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। और उसको जो भी करना था वो करने दिया, और आज वो बेंगलोर में एक IT फर्म में अच्छी पोजीशन पे है। उसने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उसने जो मल्टीमीडिया का एडवांस कोर्स किया और कंपनी ने भी उसको अवार्ड दिया, अभी प्रमोशन हुई है उसकी लास्ट मंथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज वन एग्जाम्पल। सर हम लोग का पता नहीं क्यों ऐसी सोच रहती है गार्जियंस की, और जो लोग बड़े हो गए होते हैं, वयस्क होते हैं, बच्चे नहीं समझेंगे। मेरा अपना अनुभव रहता है, बच्चा इतना समझता है चीज़ों को, बाकी जब समझदार हो जाते हैं तो बोल के समझते हैं। बच्चा आपके बॉडी जेस्चर से वो भांप लेता है चीज़ें और उसको इतनी ज़्यादा समझ होती है जैसे भी थोड़ी सी उम्र उसकी आगे बढ़ती है। तो ये कहना कि हम बच्चे से शेयर नहीं करते, मैंने ऐसे ऐसे काउंसलिंग के एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ क्राइसिस हुई है और बच्चों के संग ये डिस्कस किया गया कि घर में आर्थिक दिक्कत है, बच्चों ने अपना पॉकेट मनी हमें नहीं चाहिए, हम काम चला लेंगे, आप ये हम सब अपनी वो उसमें जो पिगी बैंक होता है उसमें रखेंगे। तो ये कहना कि बच्चे नासमझ हैं, वो समझेंगे नहीं, मेरा अपना मानना है कि बच्चे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव होते हैं। माँ के चेहरे के भाव, यकीन मानिए जितना बच्चा समझ सकता है वो इतना स्मार्ट होता है, उसको पता है आपके चेहरे के भाव में कब क्या बात बोलनी है, उसको पता है कि टेस्ट कॉपी किस समय साइन करानी है, किस मोमेंट पे साइन करानी है। जब बाहर वैन में हॉर्न बज रहा होता है, जब पिताजी शेव कर रहे होते हैं टूथ पे, बस उसी समय कि बस जल्दी से करा के निकले, वो पन्ना पलट के देख भी ना पाएँ। तो मेरा अपना मानना ये है कि बच्चों से ज़्यादा सेंसिटिव हम लोग जब और बड़े होते हैं तो सेंसिटिविटी इनफैक्ट लूज़ कर देते हैं। तो दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। Very good evening. First of all, I must be very thankful and grateful to panelists, wonderful panelists. So big applause to them. आलोक रंजन तो बिल्कुल वो हैं, डिवाइन हैं, और मोहन साहब कमाल के हैं, मधुरमा जी भी बहुत बढ़िया कर रही हैं, हर पैनलिस्ट में आती हैं। अर्चना जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। साइकोलॉजी एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत दिन से पता चला, मेरी सिस्टर भी पढ़ चुकी हैं, शायद यहीं पर पढ़ी हुई हैं। एक
ये मनोवैज्ञानिक है। तो मैं बस एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर है इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, लोग जानते कमी टाइम से। उनके भाई भी बिल्कुल डीफ एंड डम, मगर उनके पूरे परिवार, क्योंकि वो हमारे कुछ पाकिस्तान से जहाँ से आए थे, हम लोग वहीं के थे, तो उनके पूरे परिवार और उनके जो सोसाइटी ने उनकी पूरी मदद की। बिल्कुल बेचारे डेफ एंड डम थे, और बाद में ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पेंटर ऑफ द कंट्री। तो ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो आप लोग सब पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए, यू आर डूइंग वंडरफुल। आपको सबको बड़ी अच्छी अच्छी जॉब मिलेगी, आपका कैरियर बहुत अच्छा है, ये मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूँ। मैं भी यहीं पर पढ़ा हूँ, इसी पर मैं कह सकता हूँ कि जो साइकोलॉजी है ये साइंस है, मनोवैज्ञानिक। तो माई ग्रेटिट्यूड एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट। और सबने इतने इतने अच्छे व्यूज़ अपने पॉइंट आउट किए हैं डिफरेंट उस पर। सो अभी जितने लोग बैठे हैं, आई जस्ट ओनली वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि आज कितने लोग खुश हुए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी? हैप्पीनेस पे इतना सेशन हुआ है, इतने अच्छे अच्छे सबके व्यूज़ आए हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू सच्चे मन से उठा रहे हैं ना हाथ? यू ऑल ऑफ यू हैप्पी? चलिए, बहुत अच्छा। सो जैसे आलोक रंजन सर के ने काफ़ी मोटिवेट किए हैं सेशन एलएमए में, एंड लास्ट टू लास्ट एक सेशन हुआ था ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस थ्रू हैप्पीनेस। उसमें सर ने एक पॉइंट किया था कि जो कंपनी के KRS होते हैं, विच इज़ कॉस्ट टू द कंपनी, कंपनी कहते लगा करते रहो काम, आप सक्सेस विल डिपेंड ऑन हैप्पीनेस। बट ऐसा है कि हैप्पीनेस जो है वो इस डिपेंड ऑन द सक्सेस, ना कि सक्सेस हैप्पीनेस पे डिपेंड है। और कहीं ना कहीं आजकल हम सब चीज़ें सक्सेस के पीछे दौड़ते जा रहे हैं, हैप्पीनेस कहीं ना कहीं पीछे रहती जा रही है। तो इनफैक्ट कल के लिए भी नहीं, जो आज है उसी को अच्छे से जी लें, उसी के बारे में सोचें। कल जब आँख खुलेगी, कल का कल देखा जाएगा। सो बहुत लंबा फ्यूचर भी ना सोचे। व्हाट आई ऑल्सो बिलीव कि जब आप सोते हैं, थैंक्स टू गॉड, जब उठते हैं तो भी आप भगवान को याद करिए। भगवान ज़रूर हैं किसी ना किसी फॉर्म में, आइदर वो हमारे पेरेंट्स के फॉर्म में भी हैं, वो भी हमारे ही भगवान हैं जो हमें पूरा गाइडेंस करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच इंसाइटफुल सेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हैप्पीनेस फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस. So before I'll invite Shailaji for the vote of thanks, I'll invite Madhusudan Gulati sir to present token of happiness to Alok Ranjan sir. I'll invite Rahul Dutt, Secretary of Lucknow Management Association, to present token of happiness to Professor Arvind Mohan. Thank you. Thank you, sir. I'll invite Shahla, Secretary of AMU All Boys Association, to present this token of happiness to Professor Madhurima Pradhan ma'am. And I will present this to Dr. Archana Shukla ji. So I'll invite Shailaji, Secretary of Ligat Muslim All Boys Association, for the vote of thanks. And after the vote of thanks, students, आपके लिए tea refreshment arrangements बाहर हैं, and for the faculties and the LMA members and AMU members, नीचे seminar hall में on the ground floor. Good evening. Good evening, everyone. On behalf of Lucknow Management Association, University of Lucknow, and AMU All Boys Association, I would like to extend my heartiest thanks to all of you who have made this event a grand success. First and foremost, I would like to express our deep gratitude to our esteemed panelists, Professor Madhurima Pradhan ma'am,
Professor Arvind Mohan sir and Dr. Archana Shukla ma'am for sharing their invaluable insights into the importance of happiness for academic excellence. Your expertise and thoughtful contributions have truly enriched this discussion and encourage us all to embrace well-being as a foundation for academic success. I heartfelt thanks to our moderator, sir, Mr. Alok Ranjan, sir, for skillfully guiding the session and fostering the thought-provoking discussion. Your vast experience and perseverance were integrated to making these events engaging and enlightening. A special thanks to Ms. Renu Chaudhary for her meticulous coordination and ensuring everything went smoothly. Events like these require a lot of behind-the-scene efforts, and your hard work is truly appreciated. Finally, I would like to thank all our participants and attendees for joining us today. Your active engagement and caution made the event more vibrant and meaningful. As we conclude, let us carry forward the lesson we learned about happiness, well-being, and how these elements intervene with academic achievement. These lines beautifully capture the essence of today's session. जो दिल से मुस्कुरा दे वही जीता है जहाँ में, खुशियाँ अगर मिले तालीम में तो कोई क्या कहे। जहाँ हर लम्हा खुशी से हो रोशन, जहाँ हर लम्हा खुशी से हो रोशन, उस राह पर कामयाबी की हर मंजिल खुद ब खुद पास हो। Thank you once again, and I hope you enjoy the rest of the day. Thank you very much. I'll request the panelists please stay for a minute for the group photograph. I'll request the students please come forward for the photograph.